أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذي فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. صدق اللہ العظیم. مسلسل ان آیات کے اندر میں اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے اوپر میں جو نعمتیں نازل فرمائی، انعامات فرمائے، ان کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی مختلف انداز کے اندر میں بیان فرما رہے ہیں. آسمان کی نعمتیں، زمین کی نعمتیں، بارش کی نعمتیں، جسمانی نعمتیں، روحانی نعمتیں، ان تمام چیزوں کا اللہ تبارک و تعالی ان آیات کے اندر میں ذکر فرما رہے ہیں. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تیرے پروردگار نے شہد کی مکھی کے دل کے اندر میں بات ڈالی. أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ تو اپنے گھر پہاڑوں کے اندر میں بنا. وَمِنَ الشَّجَرِ، اور درختوں کے اوپر میں بنا. وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور وہاں پر تو اپنے گھر بنا جہاں پر یہ انسان اپنے گھر کی چھت کے اوپر میں ٹٹیاں بناتے ہیں، ان کے اوپر میں اپنے گھروں کو بناؤ. ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر شہد کی مکھی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ پھلوں میں سے ہر قسم کے پھلوں کو تو کھا. فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، پھر تو چلتی ہے تیرے پروردگار کے راستوں پر، جو تیرے پروردگار نے وہ راستے تیرے لیے صاف ستھرے اور ہموار کر دیے ہیں. یخرج من بطونها، ان شہد کی مکھیوں سے نکلتا ہے شراب، پینے کی چیز نکلتی ہے. مختلف الوان، اس کے رنگ الگ الگ ہوتے ہیں. فیہ شفاء للناس، اس کے اندر میں شفا ہے شہد کے اندر میں لوگوں کے لیے. ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون،
बेशक इसमें यानी शहद की मक्खी के अंदर में अलबत्ता बड़ी अलामत और निशानी है अल्लाह तबारक व तआला के वजूद और सिफात और कुदरत पर दलालत करने वाली निशानियां हैं। लिक़ौमिन यतफ़क्करून, उन लोगों के लिए, उन कौमों के लिए जो गौर फिक्र करते हैं। ये इन दो आयत का तर्जुमा हुआ। व औहा रब्बुका इलन नहली, तर्जुमा ये होगा कि तेरे परवरदिगार ने शहद की मक्खी की तरफ वही भेजी। औहा का माना वही भेजने का आता है, लेकिन हर जगह के अंदर में औहा का या यूही का तर्जुमा वही भेजने का नहीं आता। जहाँ पर वही के लफ्ज़ की निस्बत अगर रसूल की तरफ हो या नबी की तरफ हो तो वहाँ तर्जुमा करेंगे कि अल्लाह ताला ने वही भेजी रसूल की तरफ या नबी की तरफ। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेकर के आते थे, अल्लाह का कलाम लेकर के उतरते थे। या वही की भी मुख्तलिफ किस्में होती थी, मुख्तलिफ तरीके होते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारने के कलाम पाक को। इसी तरह दूसरी जगह जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, उस साल के अंदर में पैदाइश हुई थी जिस साल के अंदर में फ़िरौन पैदा होने वाले लड़कों को मार डालता था। तो उस वक्त के अंदर में जब लड़का पैदा हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के दिल के अंदर में बात डाली, ये जो बच्चा पैदा हुआ है उसको ज़रा दूध पिला दो, और दूध पिलाने के बाद में उसको एक संदूक और एक बॉक्स के अंदर में पैक करके उसको दरिया नील के अंदर में डाल दो। वहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं व औहैना इला उम्मी मूसा, औहैना इला उम्मी मूसा, हमने मूसा की माँ की तरफ वही भेजी। वही भेजी नहीं, कोई फरिश्ता वही लेकर नहीं आया था, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिल के अंदर में बात डाल दी। तो वही का माना दिल के अंदर में बात डालने का भी आता है। शैतान की तरफ से भी जो वसवसे डाले जाते हैं उसको भी शैतान की तरफ से वसवसे डालने का लफ्ज़ भी वही के ज़रिए से अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है। व औहा रब्बुका इलन नहली, तेरे परवरदिगार ने शहद की मक्खी की तरफ बात दिल के अंदर में डाली। उलमा और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने शहद की मक्खी के अंदर ये जो शहद बनाती है, शहद का जो छत्ता बनाती है, फलों को चूस करके लाती है, तो ये सारी बातें अल्लाह ताला ने उसकी तबीयत के अंदर में रखा हुआ है, उसकी फितरत के अंदर में रखा हुआ है। खाना पीना सोना हवा लेना ये हमारी फितरत है, इसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने शहद की मक्खी की फितरत और पैदाइश और तबीयत इस तौर पर बनाई हुई है कि वो शहद की मक्खी शहद बनाए बगैर जिंदा नहीं रह सकती, ये फितरी चीज़ है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने शहद की मक्खी की तरफ दिल के अंदर में बात डाली, हुक्म दिया अनित्तखिदी मिनल जिबाली बुयूता, जिबाल पहाड़ों को कहते हैं और बुयूत घरों को कहते हैं, कि अपने घर बनाओ पहाड़ों के अंदर में, दरख्तों के अंदर में। और ये जो बेल वगैरह होते हैं, वेला बेल जो होते हैं, तो उसके लिए जो लकड़ियाँ रखते हैं या उसके ऊपर में तार लगते हैं, फिर बेल को चढ़ाते हैं, तो वहाँ पर भी अपने घरों को बनाओ। सुन्न कुली मिन कुल्ल समारात, फिर खाओ फलों में से, हर फल में से, फिर चलो अपने परवरदिगार के रास्तों पर जो तेरे लिए अल्लाह ताला ने आसान कर दिए हैं, सौंप कर दिए हैं, हमवार कर दिए हैं। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने शहद की मक्खी का तज़किरा अल्लाह ताला के इनाम में से ये भी एक इनाम है, तो इनाम के तौर पर अल्लाह ताला ने तज़किरा फरमाया। इससे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने 3 चीज़ों का तज़किरा किया था। खजूर के दरख्त और अंगूर, वो खाने की भी चीज़ है,
حلال ہے، جائز ہے، اور اس سے شراب بھی بنتا ہے جو ناجائز اور حرام ہے. تو 20 کا راستہ اختیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر حکم دیا تھا کہ نبیذ بنا کر کے پیو، کوئی غرض کی بات نہیں ہے، یا کھجور اور انگور کو کھاؤ، کوئی غرض کی بات نہیں ہے، لیکن شراب پی کر کے شراب بنا کر کے پیو گے تو یہ حرام ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کے پیٹوں کے اندر میں جو دودھ بنایا اس کا بھی اللہ نے تذکرہ فرمایا تھا کہ گوبر نیچے، اوپر میں دودھ اور اس کے اوپر میں خون، ان تینوں چیزوں کے اندر میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دودھ کو تمہارے لیے حلال اور جائز کیا. پھر اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے آسمان پر سے جو بارش برسی اور اس کے ذریعہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزوں کو زندہ کیا، تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا تھا. تو یہ 2 آیتیں اور یہ تیسری آیت اس کی شہد کی مکھی والی، اس کے اندر میں اگلی 2 آیتوں کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو دعوت دی اعتدال کی طرف. اعتدال یعنی درمیانی راستے کی طرف. ہم ہر رکعت کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں، نماز کی ہر رکعت کے اندر میں، نفل ہو، فرض ہو، واجب ہو، اہدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم جس کو کہتے ہیں اعتدال والا راستہ، درمیانی والا راستہ. یہ جو شریعت ہے یا اسلامی جو شریعت ہے یہ اعتدال والا راستہ ہے. شریعت کے اندر میں اعتدال مطلوب ہے اور اعتدال پسندیدہ ہے. آدمی شہوت کے اندر میں بھی اعتدال کا راستہ، غصے کے اندر میں بھی اعتدال اور درمیانی راستہ. شہوت کے اندر میں اگر آدمی افراط اور تفریط سے اگر کام لے، اپنی شہوت کو ایسی جگہ کے اندر میں پوری کرے کہ جو اس کے لیے حلال اور جائز نہ ہو، حرام ہو، اور انسان کے اندر میں شہوت کا مادہ ہی نہ ہو، یا عورتوں کے حقوق کو ادا کرنے کی اس کے اندر میں طاقت ہی نہ ہو، تو یہ بھی مذموم ہے، یہ بھی برا ہے. انسان اپنی شہوت اور اپنے تقاضوں کو شریعت کے مطابق نکاح کے ذریعہ سے حلال اور جائز طریقے سے اپنی عورت کے ذریعہ سے پورا کرے، یہ اعتدال کا راستہ ہے. یہ ہم مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اسی طریقے سے غصے کے اندر میں بھی اعتدال مطلوب ہے. حدیث شریف کے اندر میں آتا ہے کہ غصہ کرنے والوں کی الگ الگ قسمیں ہوتی ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو جلدی غصہ آتا ہے اور بہت دیر کے اندر میں اترتا ہے. یہ برا ہے، یہ مذموم ہے. غصہ جلدی آ جاتا ہے اور اترتا ہے دیر کے اندر میں، یہ برا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر غصہ کے اعتبار سے آدمی وہ ہے کہ بہت دیر کے اندر میں غصہ آوے، جلدی غصہ نہ آوے، دیر کے اندر میں غصہ آوے اور فوراً غصہ اتر جاوے، یہ اچھا ہے. تو غصے کے اندر میں بھی جہاں غصہ کرنے کی چیز ہو وہاں پر بھی غصہ نہ آوے. اپنے گھر کی عورتیں، ماں بہنیں، بچے اور ہمارے ماتحت جو ہے وہ لوگ شریعت کے خلاف کریں اور ہم کو غصہ نہ آوے تو یہ مذموم ہے، یہ بری چیز ہے، شریعت کے اندر میں مطلوب نہیں ہے. وہاں غصہ کرنا چاہیے، یہ شریعت کے اندر میں مطلوب ہے. تو جلدی غصہ آوے اور جلدی غصہ اتر جاوے، یہ درمیانی قسم کا راستہ ہے. اہدنا الصراط المستقیم. شہد کی مکھی کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 چیزیں رکھی ہوئی ہے. ایک ضرر کی چیز ہے، نقصان کی چیز. ڈنک اگر وہ مارتی ہے، کاٹتی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے بدن کے اوپر میں جو ہے یا تو زخم جیسا ہو جاتا ہے یا چہرہ چمڑی وغیرہ پھول جاتی ہے، کھجلی لگتی ہے، جلن ہوتی ہے. یہ اس کا زہر ہے. اور یہ شہد جو ہے یہ فائدہ دینے والی چیز ہے. فیہ شفاء للناس، لوگوں کے لیے اس کے اندر میں ہر بیماریوں کی دوا اور شفا ہے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ شہد کی مکھی کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے دی کہ شہد کی مکھی کا جو نظام ہے وہ کسی بھی جانوروں کے اندر میں ایسا نظام پایا نہیں جاتا، یا کسی بھی پرندوں کے اندر میں ایسا نظام پایا نہیں جاتا. سیاست کا، راجکرن کا اور حکومت کا نظام شہد کی مکھی کے اندر میں پایا جاتا ہے. جس طریقے سے دنیا کے اندر میں کوئی
حاکم ہوتا ہے، کوئی بادشاہ ہوتا ہے، پھر اس کا کوئی وزیر ہوتا ہے، پھر اس کی ملٹری ہوتی ہے، پھر اس کے اندر میں جاسوس ہوتے ہیں، پھر اس کے اندر میں جو ہے نگہبان ہوتے ہیں، چوکیدار ہوتے ہیں، پھر اگر کوئی اسلامی حکومت ہو تو وہاں پر سزا دینے کے لیے جلاد ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں شہد کی مکھی کے اندر میں پائی جاتی. علماء نے لکھا ہے کہ شہد کی مکھی کے اندر میں ایک رانی ہوتی ہے. ہر جگہ جہاں کہیں بھی یہ چھتے بناتی ہے، اور شہد کی مکھیوں کا جو مجموعہ ہوتا ہے اس کے اندر میں ایک رانی ہوتی ہے. حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ جو شہد کی مکھی کی جو رانی ہوتی ہے اس کا نام یعصوب ہوتا ہے. یعصوب، یعقوب کے وزن پر یعصوب ہوتا ہے. جہاں کہیں بھی کوئی چھتا ہے جو اس کی رانی ہے، اس رانی کا نام یعصوب ہوتا ہے. تو یہ رانی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم سے یہ اپنے چھتے بناتی ہے، اور چھتے بنانے کے اندر میں یا تو مربع چورس شکل ہونی ہو، یا مطول لم چورس شکل کے اندر میں ہو، اور تیسری شکل ہے مثلث تیکوڑ 3 شکل کے اندر میں ہو، اور مخمس 5 شکل کے اندر میں ہو، پنچکوڑ، اور مسدس 6 کونوں والا مسدس षटकोण جس کو بولتے ہیں. شہد کی مکھی جو ہے اپنا جو چھتا بناتی ہے یہ مسدس شکل کے اندر میں بناتی ہے. اس کے اندر میں 6 کونے ہوتے، اور ماہرین نے لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی چیز 6 کونوں سے بنائی جائے اور پھر اس کے اندر میں کوئی چیز رکھی جائے تو اس کے کونے جو کوئی خالی نہیں ہوتے، سارے 6 کے 6 کونے اس کے بھر جاتے ہیں. یہ بھی عجیب و غریب چیز ہے. دنیا بھر کے اندر میں جہاں کہیں بھی شہد کی مکھی کے چھتے ہوتے ہیں ایسی ہی شکلوں والے چھتے ہوتے ہیں. تو پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے اندر میں جو رانی ہے تو اس کے یہاں حکومت کا نظام چلتا ہے. مکھیاں جب جاتی ہے پھولوں کے اوپر یا پھلوں کے اوپر میں رس چوسنے کے لیے، تو اس کے چھتے کے اندر میں ڈالنے سے پہلے اس کی تحقیق ہوتی ہے، تفتیش ہوتی ہے، یا آج کل کے اعتبار سے ہم کہیں کہ اس کی لیبورٹری ہوتی ہے. لیبورٹری کے اندر میں اگر یہ معلوم پڑتا ہے نگہبانوں کو کہ یہ کہیں گندی چیز کھا کر کے یہ آئی ہوئی ہے اور ناپاک چیز کھا کر کے یہ آئی ہوئی ہے، تو پھر اس کو رانی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور پھر وہ جلادوں کو بلاتی ہے، اور جلادوں کو بلانے کے بعد میں اس کے بعد اس شہد کی مکھی کو رانی کی طرف سے قتل کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. یہ نظام ہے ان کے یہاں. تو جو پھل اور پھول کا جو رس چوس کر کے لاتی ہے اس کی بھی تحقیق ہوتی ہے، اس کی بھی لیبورٹری ہوتی ہے. پھر اس کے بعد میں جو اس کے اندر میں چھتے کے اندر میں ڈالا جاتا ہے. ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ جو شہد ہے تو حکماء اور حکیموں کے درمیان کے اندر میں اختلاف ہے. یہ ہے کیا؟ یہ شہد کی مکھی کا پاخانہ ہے یا شہد کی مکھی کا طے کی ہوئی چیز ہے، الٹی ہے، کیا ہے؟ اس کے اندر میں بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تو اس کی الٹی ہے، چوس کر کے لاتی ہے اور پھر الٹی کرتی ہے، یہی شہد ہے جس کو ہم خوشی خوشی کھاتے ہیں. اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ پاخانہ ہے شہد کی مکھی کا، شہد جو ہے یہ اس مکھی کا پاخانہ ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہوا ہے کہ انسان کس پر فخر کرتا ہے. ابھی تھوڑے دن پہلے بھی بتایا تھا مال الانسان والفخر، انسان اور فخر کو کیا نسبت؟ اول نطفۃ وآخرہ جیفۃ، اس کی پیدائش ناپاک قطرے سے ہوئی اور اس کی وفات جو ہے یہ وفات ہونے پر وہ مردہ ہو جاتا ہے. اور تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کس پر فخر کرتا ہے، کس چیز پر فخر کرتا ہے؟ عمدہ سے عمدہ اگر وہ لباس پہنتا ہے، ریشمی کپڑا جو ہے یہ ریشم کا کیڑا ہوتا ہے، شہد کی مکھی کی طرح ریشم کا کیڑا ہوتا ہے، اور اس کا لعاب اور اس کا تھوک بنتا ہے،
उससे रेशम के कीड़े के जो हैं वो धागे बनते हैं और उससे रेशम का कपड़ा बनता है। ये लुआब है, कीड़े का लुआब, और तकब्बुर के साथ, फख्र के साथ इंसान उसको पहनता है। और कहा कि इंसान जो खाता है ये इंसान शहद की मक्खी का पाखाना खाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत के अंदर मैंने फुदला पाखाना को कहते हैं। तो ये इस एतबार से अगर हम देखें तो ये शहद की मक्खी का पाखाना है। और जब मेहमान आते हैं तो फिर बाकायदा जो है उसको सुबह के अंदर में, नाश्ते के अंदर में अंडा और ये और वो और शहद भी दिया जाता है। ये पाखाना है शहद की मक्खियों का। अल्लाह तबारक व तआला ने अजीब व गरीब निज़ाम बनाया। एक बात मेरे ज़हन के अंदर में आई थी कि जानवरों के अंदर में ऊँट, उसकी मिसाल अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर में मिसाल दी है ऊँट की। एक हाफिज़ कुरान है और पढ़ता नहीं है और सुनता नहीं है, सुनाता नहीं है, तो थोड़े दिनों के अंदर में ये भूल जाएगा, उसके ज़हन के अंदर में से निकल जाएगा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी मिसाल दी कि इस तौर पर भूल जाएगा जैसा कि कोई ऊँट अपने मालिक के यहाँ से निकल जाता है। ऊँट की ये सिफत और खासियत है कि एक मरतबा उसकी नकील छोड़ दो तो वो दौड़ता रहता है, भागता रहता है, वापस आने का वो नाम नहीं लेता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाग जाए और भाग करके फिर कभी भी वापस ना आए, इल्ला कि उसका मालिक अगर उसको पकड़ करके ले आए वो अलग बात है, वरना उसकी तबीयत और फितरत ये है कि वो वापस आता नहीं है, मालिक के घर तक वापस नहीं आता। दूसरी मिसाल इस कुरान पाक के अंदर में शहद की मक्खी ही दी है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि शहद का छत्ता न मालूम कहाँ बनाती है और फलों का रस चूसने के लिए न मालूम कहाँ से कहाँ दूर तक चली जाती है, तो ये भटकती नहीं है, अपना रास्ता भूल नहीं जाती। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए रास्ते को आसान कर दिया। कुली सुम्मा कुली मिन कुल्ल समरात, अल्लाह ने हुक्म दिया शहद की मक्खी को कि फलों में से हर एक को खाओ। फसलों की फिर चलो सुबुल रब्बी की, अपने परवरदिगार के रास्तों पर, ज़ुलुलन जो तेरे लिए हमवार कर दिए हैं, तेरे लिए आसान कर दिए हैं, तेरे लिए साफ कर दिए हैं। तो जहाँ से वो निकलती है रस चूस करके फिर अपने छत्ते के अंदर में वो वापस आती है। यखरुजु मिन बुतूनिहा, उनके पेटों से निकलता है शराबन, पीने की चीज़ यानी शहद, मुख्तलिफुन अलवानुहु, उसके रंग अलग अलग होते हैं। मुख्तलिफुन अलवानुहु के अंदर में दो बातें लिखी है उलमाए किराम और मुफस्सिरीन ने। एक तो ये कि अलग अलग फलों के और अलग अलग फूलों के चूसने की वजह से, चूँकि फल और फूल के रंग अलग अलग होते हैं, इसलिए ये जो शहद है उसका रंग भी अलग अलग होता है। कहीं पर लाल होता है, सुर्ख होता है, कहीं पर जर्द और पीला होता है, और कहीं पर जो है ये हरे सब्जी की तरफ माइल ऐसा होता है। जैसे जैसे फूल और फल के रंग होते हैं इस तरीके से उनका शहद भी अलग अलग रंगों के अंदर में होता है। दूसरी बात उलमाए किराम ने लिखी है मुख्तलिफुन अलवानुहु, शहद के रंग अलग अलग होते हैं, मौसम के एतबार से रंग बदल जाते हैं। सर्दी के ज़माने के अंदर में अलग रंग होता है, गर्मी के ज़माने में अलग रंग होता है, और बारिश के ज़माने के अंदर में अलग रंग होता है। फीही शिफाउन लिन्नास, उसके अंदर में तंदुरुस्ती है, शिफा है लोगों के लिए। लिन्नास फरमाया, तमाम लोगों के लिए, इंसानों के लिए। हदीस शरीफ के अंदर में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, आकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की, या रसूल अल्लाह मेरे भाई के पेट के अंदर में दर्द है, तकलीफ़ है और दस्त बंद नहीं होता, जुल्लाब लग गया, दस्त बंद नहीं होता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहद पिला। वो घर गए, अपने भाई को शहद पिलाया, अच्छा नहीं हुआ। दूसरे दिन फिर आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहद पिलाओ।
ایک روایت کے اندر میں 2 مرتبہ کا آتا ہے اور ایک روایت کے اندر میں 3 مرتبہ کا ذکر آتا ہے کہ وہ تیسری مرتبہ آئے، کہا کہ یا رسول اللہ شہد پلاتا ہوں لیکن دست اور جلاب بند نہیں ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدق اللہ وکذب بطن اخیک. صدق اللہ نے سچ فرمایا. اللہ نے کیا فرمایا؟ سچ. فیہ شفاء للناس، شہد کے اندر میں لوگوں کے لیے فائدہ ہے، تندرستی ہے، دوا ہے، علاج ہے. صدق اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا. وکذب بطن اخیک، اور تیرے بھائی کا پیٹ جو ہے وہ جھوٹا ہے، جاؤ شہد پلاؤ. تو تیسری دن یا تیسری مرتبہ جب شہد پلایا تو اس کے بعد میں جو ہے وہ دست جو آتے تھے وہ بند ہو گئے. اس حدیث کی تشریح کے اندر میں لکھا ہوا ہے کہ انسان کے معدے کے اندر میں کچھ فاسد مادہ پیدا ہو جاتا ہے، کوئی بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. یہ شہد جو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی طاقت رکھی ہوئی ہے کہ آدمی شہد کو پیتا ہے تو معدے کے اندر میں اور انسان کے بدن کے اندر جو فاسد مادہ ہوتا ہے اس کو پھینک دیتا ہے، پاخانہ کے راستے سے نکال دیتا ہے، پیشاب کے راستے سے نکال دیتا ہے. تو یہ جو صحابی جن کو شہد پینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، ان کے پیٹ کے اندر میں فاسد مادہ بہت زیادہ تھا. پہلے دن پلانے کے پر ختم نہیں ہوا، دوسرے دن پلانے پر وہ مادہ ختم نہیں ہوا، تیسرے دن جب پلایا تو جو مادہ پیٹ کے اندر میں تھا وہ مادہ نکل گیا. اس کے بعد میں جو ان کا جو دست اور پاخانہ تھا وہ بند ہو گیا. ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس کے اندر میں البتہ بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی وجود میں، اللہ کی صفات کے اندر میں جو غور و فکر کرتے ہیں اس کے اندر بھی نشانی ہے. تو یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے اندر میں ایک تو شہد کا ذکر فرمایا، اس سے پہلے نبید تمر، نبید زبیب کل درس کے اندر میں آیا تھا، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دودھ کا تذکرہ فرمایا. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کا تذکرہ فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کو یہاں ذکر کرتے ہیں، اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ جنت کے اندر میں بھی 4 قسم کی پینے کی چیزیں ہوگی، جو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. جنت کا تذکرہ فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فیہا انہار من ماء غیر آسن، ان باغات کے اندر میں، جنتوں کے اندر میں نہریں ہوگی، من ماء پانی کی نہریں ہوں گی، غیر آسن پانی بگڑا ہوا نہیں ہوگا، پانی بدبودار نہیں ہوگا، ایک پانی کی نہریں. وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، جنتوں کے اندر میں دودھ کی نہریں ہوں گی، ایسی نہریں کہ اس کا مزہ خراب نہیں ہوگا، بگڑے گا نہیں. 2. تیسرا وانہار من خمر، اور وہاں جنتوں کے اندر میں نہریں ہوگی، شراب کی نہریں ہوگی، لذۃ للشاربین، پینے والوں کے لیے بہت لذیذ اور اچھی چیز ہوگی. دنیا کی شراب پینے کی وجہ سے جیسا کہ کل بتایا تھا کہ عقل ختم ہو جاتی ہے، عقل ڈوب جاتی ہے، عقل ماری جاتی ہے، اور آخرت کی شراب، جنت کی شراب، اس سے عقل کے اوپر میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. 3 قسم کی نہریں ہوئی، اور 4تھی قسم کی نہر شہد کی نہریں ہوگی جنت کے اندر میں. وانہار من عسل مصفی، اور جنتوں کے اندر میں نہر ہوگی، شہد کی نہریں ہوگی جو صاف شفاف ہوگا. ان جگہوں کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کائنات کے اندر میں سے بڑی بڑی چیزوں کو ذکر فرمایا. اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو دعوت دیتا ہے کہ تو کائنات کے اندر غور و فکر کرتا ہے، کائنات کی چیزوں کو دیکھتا ہے، اپنے بدن کے اندر میں بھی دیکھ، اپنے جسم کے اندر میں بھی غور و فکر کر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے انسان کی پیدائش کا تذکرہ فرمایا. واللہ خلقکم، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا.
सुम्मा यतवफ़ाकुम, फिर अल्लाह ताला तुमको वफ़ात दे देगा। वमिनकुम, और तुम्हारे अंदर में मन युरद्दु इला अर्ज़लिल उम्र, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उनको ऐसी लंबी उम्र दी जाती है कि उम्र के घटिया दर्जे तक वो लोग पहुंच जाते हैं। ऐसी उम्र के याद नहीं रहता, किसी को पहचानता नहीं। लिकैला यअलम बाद इल्मिन शैया, ऐसी उम्र तक उसको पहुंचा दिया जाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जानने के बाद भी वो अनजाना हो जाता है। जो उसने जाना था, पढ़ा था, याद किया था, वो सब का सब भूल जाता है। इन्नल्लाह अलीमुन कदीर, बेशक अल्लाह तबारक व तआला बड़े जानने वाले और बड़ी कुदरत वाले हैं। इस आयत की तफसीर के अंदर में ये जो जिक्र किया गया कि वल्लाहु खलक़कुम, अल्लाह ताला ने तुमको पैदा किया। पैदा किस तौर पर किया, ये आगे वाले सबक के अंदर में, दर्स के अंदर में आ गया था। सुम्मा यतवफ़ाकुम, फिर अल्लाह ताला तुमको वफ़ात देता है या तुमको वफ़ात देगा। या अगर वफ़ात अभी नहीं देता तो तुम्हारी उम्रें इतनी उम्रें लंबी कर देता है कि गोया उम्र के एकदम घटिया किस्म के दर्जे के अंदर में इंसान पहुंच जाता है। ऐसी उम्र जिस वक्त के अंदर में आदमी मोहताज हो जाता है। उलमाए किराम ने लिखा है कि इंसान की जब पैदाइश हुई उस वक्त के अंदर में इंसान मोहताज था और ज़लील था, न वो खा सकता था, न पी सकता था, बल्कि अपनी माँ का दूध भी वो पी नहीं सकता था, न बोल सकता था, न कुछ कह सकता था, कुछ भी नहीं था। धीरे 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 अल्लाह तबारक व तआला ने इसको बड़ा किया। तो रब इसीलिए कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे बतदरीज पालने वाला, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम जहानों को पालने वाला। तो एक इंसान के ऊपर में बचपन के अंदर में जो हालत गुजरी, एक ज़माना आएगा कि फिर बुढ़ापे के अंदर में ऐसा ही हो जाएगा कि ना वो खुद खा सकता है और न खुद पी सकता है और न बोल सकता है, न अपनी दिल की बात को किसी को बता सकता है, बल्कि अपने रिश्तेदारों को भी नहीं पहचानता, अपनी हालात को भी नहीं पहचानता। ऐसी हालत के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला उम्र को पहुंचा देते हैं। वमिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़लिल उम्र लिकैला यअलम बाद इल्मिन शैया, ऐसी उम्र तक पहुंचा देते हैं कि उसका जाना हुआ और हासिल किया हुआ इल्म ये भूल जाता है। इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ये जो उम्र है ये 75 साल की उम्र है। 75 साल की उम्र के अंदर में आदमी का हफ्ज़ा कमज़ोर होता है, याद शक्ति कमज़ोर हो जाती, बदन के आज़ा कमज़ोर हो जाते हैं, रोशनी आँखों की कम हो जाती है, सुनने की ताकत कम हो जाती है। फिर दूसरा कौल 80 साल की उम्र का भी लिखा, तीसरा कौल 90 साल की उम्र का लिखा और चौथा कौल जो है वो 95 साल की उम्र का लिखा। अब यूँ समझो कि सारे अक़वाल को अगर मिलाते हैं तो इंसान की ये जो हालत है ये 75 साल से पैदा होकर 95 साल तक पहुँचती है। और आम तौर पर मैं तो ये कहा करता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आमार उम्मती मा बैन सित्तीन इला सबईन, कि मेरी उम्मत की उम्रें 60 से लेकर के 70 तक है। तो मैं लतीफ़े के तौर पर अपने पास पढ़ने वाले तलबा को यूँ कहा करता हूँ कि 60 साल की गारंटी और 70 साल की वारंटी, 60 गारंटी और 70 वारंटी। अब किसी कंपनी की कोई चीज़ लाओ और गारंटी और वारंटी भी ख़त्म हो जाए तो फिर उसके ऊपर में कोई चीज़ बदली दी जाती नहीं है। तो जो कुछ भी मिले तो ये गारंटी और वारंटी है 60 और 70 साल की, उसके बाद में क्या कहते हैं वो फ़ायदा ही फ़ायदा है। लेकिन एक अजीब बात लिखी है, अच्छा ये तो अभी समझ में आ गया कि अक्ल जो है मारी जाती है, जो भी है वगैरह, आदमी खाता है और खाने के बाद में 15 मिनट के बाद में अगर कहोगे चलो खा लेते हैं, नहीं खाने तो नहीं खाया, चलो खाया हुआ भूल जाता है, ये हाल हो जाता है। अजीब व गरीब बात लिखी है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु ने और हज़रत इकरमा रदी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने भी लिखी हुई बात कि जो आदमी कुरान शरीफ के पढ़ने पढ़ाने का अगर मशगला रखता है
और मुफ्ती शमी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उसका तर्जुमा किया हुआ है कि जो आदमी कुरान शरीफ पढ़ता रहता है उसकी ये हालत नहीं होगी। कौन सी? ये जो बुढ़ापे की हालत के अंदर में आदमी ना याद रख सकता है, ना किसी को पहचान सकता है वगैरह, जो ये जो हालत होती है ये कुरान शरीफ पढ़ने वाले की ये हालत होती नहीं है। एक मरतबा तकरीबन 99 साल की उम्र थी, 99 साल की उम्र थी। हज़रत मुफ्ती अब्दुर्रहीम साहब लाजपुरी रहमतुल्लाह अलैह, वो गैर मुक़ल्लिदों के साथ में जब बहस मुबाहसा चलता था, मुनाजरा चलता था, तो यहाँ से जो मुफ्ती अब्दुर्रहीम साहब लाजपुरी रहमतुल्लाह अलैह को हम यहाँ से लिख करके भेजते थे कि उन्होंने ये सवाल किया, हमने ये जवाब दिया। उन्होंने ये पर्चा शाये किया, उस पर्चे के जवाब के अंदर में हमने ये पर्चा शाये किया। तो हमारी जो हसन टेलर थे जम्मू सर वाले रहमतुल्लाह अलैह, वो कहीं गए थे रांदेर, तो मुफ्ती साहब की खिदमत के अंदर में गए थे मिलने के लिए। तो उन्होंने फतावा रहीमिया की 8 जिल्दें उनके साथ में मुझे भेजी थी हदिये के अंदर में। और मुफ्ती साहब ने ये कहा कि मेरा इरादा है कि मौलवी साहब से मिलना चाहिए, यानी मुझे। तो ये तकरीबन 9-10 बजे आए थे मदरसे, और उसी वक्त में इजाज़त लेकर के सीधा रांदेर चला गया। लेकिन उस वक्त के अंदर में जो मुलाकात का वक्त था वो मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया था, कोई 11 से लेकर के 12 बजे तक का वो वक्त था। मैं पहुंचा था ज़ोहर के बाद, तो मौलाना यूसुफ बड़कोदरवी वो भी रहमतुल्लाह अलैह हो गए, वो मुझे मिले। तो कहा कि मुफ्ती साहब आपको बहुत याद करते थे। मैंने कहा मैं इसीलिए मैं आया था मुलाकात के लिए, लेकिन वो खादिम ने बतलाया कि वक्त तो ख़त्म हो गया है, अब तो ज़ोहर के बाद में अब तो कल आना 10-11 बजे। तो मौलाना यूसुफ साहब मुझे ले गए कि बोला नहीं चलो आप मेरे साथ में चलो, तो गए। अब ये 99 साल की उम्र थी, और उस वक्त के अंदर में बीनाई ख़त्म हो गई थी, उनको दिखता नहीं था। और पलंग जो था वो बीच के अंदर में पलंग था, और बड़ा कमरा था, और चारों बाजू के अंदर में ये दीवारों से लेकर के ऊपर कबाटों के ऊपर में भी चारों तरफ किताबें ही किताबें थी। उसके बाद में एक मसला में ये लिखा था गैर मुक़ल्लिदीन के खिलाफ के अंदर में कि अगर तुम इब्न तैमिया को मानते हो और यूँ कहते हो कि इब्न तैमिया ने 8 रकात तरावी का कौल नकल किया हुआ है, तो मैंने लिखा था कि इब्न तैमिया ने 36 रकातें भी लिखी है। तरावी की कितनी रकातें? 36 रकातें लिखी हुई है, 8 भी नहीं 20 भी नहीं, कितनी? 36 रकातें लिखी हुई है। तो हमने पर्चे के अंदर में लिख दिया था। तो हज़रत मुफ्ती अब्दुर्रहीम साहब लाजपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ये जो इब्न तैमिया का कौल और बात तुमने जो नकल की, तो उनकी कौन सी किताब से तुमने नकल की? तो मैंने कहा कि फतवा इब्न तैमिया के अंदर में मौजूद है। फतवा इब्न तैमिया की 40 जिल्दें हैं, बड़ी बड़ी 40 जिल्दें। अब अभी तो याद नहीं है 37वीं जिल्द में या 35वीं जिल्द में कोई था, वो अभी याद नहीं है। तो मैंने कहा कि ये फलानी जिल्द के अंदर में। तो जो बात असल में बताना चाहता हूँ वो ये है कि मुफ्ती अब्दुर्रहीम साहब लाजपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना यूसुफ बड़कोदरवी रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि इस कोने के अंदर में ऊपर वाले जो कबाड़ है उसकी दाईं जानिब के अंदर में फतवा रहीम ने है, उसमें से उतार करके लाओ। ये मकान के बीच के अंदर में उनका कमरा था, और इशारा करके बताया कि फलाने कोने के अंदर में। अब जो उमर साहब सीढ़ी के ऊपर में जब चढ़े ऊपर, तो देखा कि वो जिल्द वहाँ पर मौजूद थी। तो हज़रत इकरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो कुरान शरीफ के पढ़ने पढ़ाने का मशगला रखता है तो उसका ज़हन खराब नहीं होता है, उसकी याद शक्ति खराब नहीं होती है। वल्लाहु फज़्ज़ल बअज़कुम अला बअज़िन फ़िर रिज़्क़ि। फिर इसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला इंसानों के ऊपर में जो नेमतें ज़िक्र फरमाई है, उनमें से एक नेमत ये है कि अल्लाह ताला ने रोज़ी के अंदर में बाज़ को बाज़ से बढ़ कर के बनाया, बाज़ को बाज़ पर फजीलत दे दी। अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को गरीब बनाया, किसी को मालदार बनाया, किसी को काम करने वाला बनाया, किसी को काम कराने वाला बनाया, किसी को बेनियाज बनाया, किसी को मोहताज बनाया।
अजीब व गरीब निज़ाम है तकवीनी तौर पर दुनिया का अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। ये भी गौर फिक्र करने की चीज़ है और ये भी अल्लाह तबारक व तआला के वजूद और कुदरत पर दलालत करने की चीज़ है। उलमा ने लिखा कि अगर सारी दुनिया के लोग मालदार होते, सारी दुनिया के लोग मालदार, जहाँ कहीं भी देखो मालदार मालदार मालदार, तो काम करने के लिए कौन आएगा? मजदूरी करने के लिए कौन आएगा? हर कसो नाकस सुबह में उठेगा और नाले के पास में जाकर के खड़ा हो जाएगा कि आना ही मेहनत के लिए, मजदूरी के लिए। तो वो कहेगा कि मैं ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आया हूँ, तेरे को आना है मेरे घर पर मेहनत मजदूरी करने के लिए। सारी दुनिया के लोग अगर मालदार हो जाए तो फिर मेहनत मजदूरी करने के लिए कौन जाएगा? और अगर सारी दुनिया के लोग गरीब तंगदस्त हो जाए तो मेहनत करने के लिए कौन ले जाएगा? हर कसो नाकस मेहनत ढूंढेगा, जहाँ कहीं भी जाकर के पूछेगा तो मैं भी मोहताज हूँ, मुझे भी काम की ज़रूरत है, चलो तुम्हारे साथ में मैं भी आता हूँ। किसी को मालदार बनाया, किसी को गरीब बनाया। फिर उसके बाद में जो मालदार होता है वो हमेशा मालदार नहीं रहता और जो गरीब होता है वो हमेशा गरीब नहीं रहता। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, ये ज़माने हैं, ज़माने के दिन हैं, हम लोगों के अंदर में बदलते रहते हैं। अभी हम तो जो है वारंटी की उम्र पर चल रहे हैं, 70वां साल है। हमने देखा कि जो लोग ज़कात देने वाले थे आज उनकी नस्लें ज़कात ले रही है, और जो लोग ज़कात लेते थे उनकी नस्लें आज ज़कात दे रही है। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, अल्लाह तबारक व तआला फेरता रहता है, बदलता रहता है। एक बात और बता दूं कि अगर हम अपनी नस्लों का फ़ायदा चाहते हैं, अपनी नस्लों का फ़ायदा, तो रिज़्क़ हलाल, हलाल की रोज़ी कभी ख़त्म नहीं होती, हलाल की रोज़ी कभी ज़ाय नहीं होती। अभी तो ये रमज़ान के महीने के अंदर में बहुत से लोगों के फ़ोन भी बहुत आते हैं ज़कात के बारे के अंदर में, ज़कात के सिलसिले में। फ़ोन इसलिए नहीं करते कि ज़कात अदा करना है, फ़ोन इसलिए करते हैं कि ज़कात से किस तौर पर बच जाए, किस तौर पर बचे। तो मैं आमतौर पर यही कहता हूँ कि अभी हीले हवाले करके अगर ज़कात से बचोगे तो डॉक्टर से नहीं बचोगे, एक्सीडेंट से नहीं बचोगे। वही माल डॉक्टर ले जाएगा और वही माल एक्सीडेंट के अंदर में चला जाएगा। हीले करते, सोना है चांदी है, शोहर ने औरत को मालिक बना दिया 6 महीने तक, तो साल तो नहीं गुजरा। 6 महीने के बाद में औरत ने शोहर को मालिक बना दिया तो यहाँ पर भी साल नहीं गुजरा। फिर शोहर ने उसको मालिक बना दिया, तो ये ऐसा घूमती रहती है। ज़कात वाजिब नहीं होती, लेकिन डॉक्टर ले जाता है वो इसकी समझ में आता नहीं, एक्सीडेंट के अंदर में चला जाता है वो समझ में नहीं आता। बहुत सी मरतबा हम यही कहा करते हैं कि अगर ज़कात का माल अगर अदा कर दिया गया तो फिर इत्मीनान के साथ में बैठे रहो, न वो माल जलेगा और न चोरी होगा और न कोई लूट करके ले जाएगा। और अगर कौमी तूफान फसादात भी होते हैं तो उसकी वजह से ये माल जलाया नहीं जाता जिस माल की ज़कात अदा की जाती है, अल्लाह की हिफाजत के अंदर में हो जाता है। सूरह कहफ के अंदर में है वो दीवार जो गिरने वाली थी और हज़रत खिज़र और मूसा अलैहिस्सलाम ने वो बनाई थी, तो उसके नीचे खजाना था, वम्मल जिदारु फ़कान लिग़ुलामैनि यतीमैनि फ़िल मदीनति वकान तहतहु कंज़ुल लहुमा। ये जो दीवार थी वो 2 यतीमों की दीवार थी, जो शहर के अंदर में जो 2 यतीम थे उनकी थी, और उनके नीचे खजाना था। वकान अबूहुमा सालिहा, और उन दोनों के बाप नेक थे, दीनदार थे, सालेह थे। एक तो तर्जुमा आमतौर पर अबू का तर्जुमा बाप का करते हैं, लेकिन मुफस्सिरीन ने यह तर्जुमा किया है कि उनके दादा नेक थे। वकान अबूहुमा सालिहा, यानी उनके दादा नेक थे। तो दादा की नेकी और दादा की जो है तकवा तहरत और परहेज़गारी किसको काम लग रही है? पोतों को काम लग रही है। ये है वल्लाहु फज़्ज़ल बअज़कुम अला बअज़िन फिर रिज़्क़ि, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे बास को बास पर फजीलत दी रोज़ी के अंदर में। अच्छा, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने फजीलत दे रखी है, मालदार बना रखा है, उनके पास में गुलाम हैं, बांदियाँ हैं, तो वो आका अपनी बांदियों को और अपने गुलामों को इतना माल नहीं दे देते
कि वो भी अपने आका जितना मालदार बन जाए, या बादी जो अपने आका जैसी मालदार बन जाए। कोई ना कोई तो फर्क रहता है मालिक के दरमियान में और ममलूक और गुलाम के दरमियान में। इसको अल्लाह ताला फरमाते हैं फमन लदी फद्दुलु, जिनको फजीलत दी गई है माल के अंदर, तो वो माँ बिराद भी रिस्की है, वो अपनी रोजी रोटी को लौटाने वाले नहीं है, अलामा मलकत अयमानुहुम, अपने गुलामों पर अपने बागियों पर, फहुम फीही सवा, कि ये मालिक और आका अपने गुलाम और बागियों को इतना माल और सामान दे दे कि माल के अंदर में दोनों बराबर हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो जब दुनिया के अंदर में एक आका और एक गुलाम और एक मालिक और ममलूक माल के एतबार से बराबर नहीं हो सकते, तो खाली के कायनात और मखलूक, खाली के कायनात और बुत, खाली के कायनात और मूर्तियाँ, ये दोनों बराबर हो सकते नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये नेमतें इंसानों के सामने जिक्र फरमाई। फिर अल्लाह तबारक व तआला पूछते हैं कि अफ़ा बिनिअमतिल्लाहि यजहदून, क्या अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का वो लोग इनकार करते हैं। वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने माल वगैरह की नेमत का तज़किरा फरमाया। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने तुम्हारी रातों के अंदर में, जानों के अंदर में, जिस्मों के अंदर में भी हमने नेमतें कर रखी है। वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन, अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा कर रखा है तुम्हारे लिए तुम्हीं में से जोड़ों को। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला ने बीवी हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, तो बाईं जानिब की ऊपर वाली पसली से पैदा किया था, तो मिट्टी कम पड़ गई थी, गारा कम पड़ गया था। अगर अल्लाह ताला चाहता तो फरिश्ते से जितना गारा मंगवा था डबल मंगवा था। जो पुतला बनाया गारा, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम का पुतला नहीं बनवाया, आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया। आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और जन्नत में रहने लगे। एक मरतबा सोए हुए थे कि सोने की हालत के अंदर में बाईं जानिब की पसली काट करके अल्लाह तबारक व तआला ने हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अगर अल्लाह ताला चाहता तो नए गारे से बीवी हव्वा को पैदा करता, लेकिन इंसान की पसली से बनाकर इस बात की तरफ इशारा किया कि तुम्हारा जुज है, ये तुम्हारा हिस्सा है। औरत जो है मर्द के लिए एक जुज और एक हिस्सा की हैसियत रखती है। वजअल लकुम वल्लाहु जअल लकुम मिनस समाई मिन अनफुसिकुम अज़वाजा वजअल लकुम मिन अज़वाजिकुम, और पैदा किया तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों से बनीना व हफदतन, बेटे भी बनाए और पोते भी बनाए। व रज़क़कुम मिनत तय्यिबात, और अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको पाकीज़ा रोज़ियाँ अता फरमाई। अफ़ा बिल बातिल युमिनून, फिर भी तुम बातिल को मानोगे, बूतों की और मूर्तियों की पूजा करोगे। व बि निअमतिल्लाहि हुम यकफुरून, और अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का ये इनकार करेंगे। व यअबुदून मिन दूनिल्लाहि, और ये मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार इबादत करते हैं अल्लाह ताला को छोड़कर, मा ला यमलिकु लहुम रिज़्क़ा, ऐसी चीज़ों की इबादत और पूजा करते हैं कि ये उनके लिए रोज़ी के मालिक नहीं है। मिनस समावाति वल अर्दि शैया, आसमान और ज़मीन में से कुछ भी ये ताकत नहीं रखते। वला यस्ततिऊन, और ये मूर्तियाँ और बुत ये इंसानों को रोज़ी देने की ताकत नहीं रखते। फला तज़रिबु लिल्लाहिल अमसाल, लिहाजा तुम जो है अल्लाह ताला के लिए मिसाल बयान मत करो। इन्नल्लाह यअलमु व अंतुम ला तअलमून, बेशक अल्लाह तबारक व तआला जानता है और तुम नहीं जानते। इसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने और दो मिसालें दी है, जिक्र की हुई है, बस सिर्फ तर्जुमा कर देता हूँ। ज़रबल्लाहु मसलन अब्दन ममलूकन, अल्लाह तबारक व तआला ने एक गुलाम की मिसाल बयान फरमाई जो ममलूक है। ला यक़दिरु अला शै, किसी भी चीज़ पर वो कुदरत रखता नहीं है। वमन रज़क़नाहु मिन्ना रिज़्क़न हसना, और दूसरा वो आदमी है कि हमने उसको अच्छी खासी रोज़ी दे रखी है। फ़हुव युनफ़िक़ु मिन्हु सिर्रन व जहरा, वो हमारी दी हुई रोज़ी के अंदर में से वो खर्च करता है, आहिस्ता से भी, चुपके से भी और जाहिर में भी। हल यस्तवून, क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? एक तो ऐसा गुलाम है कि उसके पास में कुछ नहीं है
اور دوسرا ایسا بندہ ہے کہ اللہ کے راستے کے اندر میں خرچ کرتا ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اسی طریقے سے خالق اور مخلوق دونوں برابر نہیں ہو سکتے. الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر لوگ جو ہے وہ جانتے نہیں. وضرب اللہ مثلا رجلین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو آدمیوں کی مثال بیان کی. احدہما ابکم، ان میں سے ایک گنگا ہے، لا یقدر علی شیء، کسی بھی چیز کی وہ طاقت نہیں رکھتا، نہ بولنے کی نہ کچھ کرنے کی. اور عام طور پر جو گنگا ہوتا ہے وہ بہرا بھی ہوتا ہے، تو نہ بولنے کی طاقت رکھتا ہے اور نہ سننے کی طاقت رکھتا ہے. وَهُوَ قَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، اور یہ غلام اپنے آقا کے اوپر میں بوجھ ہے. أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ، اپنا آقا اس کو جہاں کہیں بھی بھیجتا ہے تو کام اچھا کر کے نہیں آتا، خیر کر کے آتا نہیں ہے. هَلْ يَسْتَوِي هُوَ، کیا وہ انسان برابر ہو سکتا ہے اور وہ انسان وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ، وہ انسان کہ جو عدل انصاف کے ساتھ میں حکم کرتا ہے. وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور وہ صراط مستقیم کے اوپر میں بھی ہے، تو کہ یہ دونوں غلام برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، اور یہ بت اور یہ پتھر یہ جو مخلوق ہے یہ دونوں برابر ہو سکتے نہیں ہیں.